Assalamu alaikum students of class 5. How are you? Welcome to the 8th lecture of SST. Today we are going to start the second chapter of your geography portion, that is the world climate. Students, most of us know the difference between what is weather and what is climate. Let us revise some of the main concepts here. Climate is what we expect and weather is what we get. इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? Climate is the long term weather condition of a place, and weather is the day to day condition of heat, cold and humidity, cloudiness, dryness or rain in a place. मतलब weather is the short term climatic condition of a place, and climate is the long term climatic condition of a place. Meaning कि क्लाइमेट वो है जो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि जैसे जून जुलाई अगस्त में गर्मी पड़नी है खूब, बीच में मानसून का सीज़न आना है और फिर सितंबर अक्टूबर से मौसम चेंज होना शुरू होगा, ठंड आ जाएगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. लेकिन वेदर जो होता है इट इज़ अ कंटिन्यूसली चेंजिंग कंडीशन ऑफ क्लाइमेट इन अ प्लेस. लाइक सुबह में ऐसा हो सकता है कि सनी वेदर है, फिर आप स्कूल आए, उसके बाद थोड़े थोड़े क्लाउड्स आने शुरू हो गए, उसके बाद रेनी हो गया. ये एक दिन का वेदर भी ऐसा हो सकता है और एक वीक का भी इस तरह वेदर हो सकता है कि उसमें कंटिन्यूअस क्लाइमेटिक चेंजेस आए. तो दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट. Weather is the day-to-day condition of heat and cold, humidity, cloudiness, dryness, and rain in a place. And climate is the weather condition in an area over a long period of time. ये weather और climate की definitions है. Climate in different places on earth is not the same. Some areas में climatic conditions even different cities में और even within cities भी बहुत सारे changes होते हैं, climatic changes होते हैं. A place closer to the North Pole or the South Pole is very cold throughout the year. अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब जितने प्लेसेस होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर बहुत ठंडे रहते हैं. Whereas a place closer to the equator is usually very hot throughout the year. तो हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा. हमने इसको लर्न किया था मैपिंग वाले चैप्टर में दैट दिस line in the center of the earth, imaginary line, is an equator. This is equator. And then when we go to the top of the world map, this is the North Pole and this is the South Pole. So the North Pole and the South Pole and the places close to the North Pole and the South Pole are cold throughout the year, whereas the places close to equator are usually very hot throughout the year. अब इसके यहाँ इक्वेटर के करीब करीब जितनी places होंगी ये throughout the year गर्म रहेंगी, whereas North Pole के करीब और South Pole के करीब जितने areas हैं ये throughout the year ठंडे रहते हैं. Okay students, now come to the effects of climate. Effects of climate का मतलब है मौसम के असरात. Climate has great effect on people and the way they live. मतलब कि climate जो मौसम होता है उसका लोगों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उनके रहने के तरीकों पर भी असर पड़ता है. Climate also has an effect on the clothes we wear, the food we eat and the way we spend our leisure time. Leisure time का मतलब है फारिग वक्त. In warm climate, people can take part in outdoor and water sports. And in cold climate, people can still take part in outdoor sports, but they mostly prefer to stay indoors and enjoy indoor games. गर्म मौसम के लोग बाहर जाना, एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं. लाइक आपकी जब समर वेकेशंस होती हैं तो आप वाटर स्पोर्ट्स, वाटर पार्क्स में जा सकते हैं, पार्क्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स में एंजॉय करते हैं, खूब साइकिलिंग करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं. और जब सर्दियां हो जाती हैं
तो आप इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होती है। घर के अंदर हीटर ऑन करके कमरे को वार्म करके वहाँ ज़्यादा इंजॉय करते हैं, रादर कि आप बाहर सर्दी में निकल जाएं और आप ठंड में बैठ जाएं और बीमार हो जाएं। सो climate has great effect on people and the way they live. Climate also has an effect on the clothes we wear, the food we eat and the way we spend our leisure time. हम अपना फारिग वक्त कैसे गुजारते हैं, किस मौसम में, वार्म क्लाइमेट में और कोल्ड क्लाइमेट में। जी स्टूडेंट्स, come to page number 8 of your book. In some parts of the world, there is a lot of rain and many trees. People use wood to make their houses. जो एरियाज बहुत लश ग्रीन होते हैं या वहाँ पे वुड बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो मोस्टली लोग वहाँ पर ट्रीज की वुड लेकर उससे अपने हाउसेस वगैरह बिल्ड करते हैं। ये अक्सर वैलीज और ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की इजी अवेलेबिलिटी ना हो, जहाँ आपके पास और कोई मटेरियल बहुत आसानी से अवेलेबल ना हो, लाइक माउंटेन्स पर या ऐसे एरियाज जहाँ पर रोड के ज़रिए ईंटें या फाइबर ब्लॉक्स या फिर कोई चीज़ ना पहुँच सके, सीमेंट वगैरह ना जा सके, तो वहाँ सबसे कंफर्टेबल मटेरियल अवेलेबल जो होता है उनके लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए, दैट इज़ वुड। तो most of the people in those area where there is a lot of rainfall, they make their houses with wood. Some crops grow well in cold climate while others grow well in warm climate. अब ये तो हम सबको मालूम है कि बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए होता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो दो मेन क्रॉप्स है ना, दैट इज द वीट एंड द राइस, इनकी एग्जांपल हमको दी है। लाइक wheat grows well in milder climate. माइल्ड होता है मॉडरेट क्लाइमेट, बहुत गर्म भी नहीं और बहुत ठंडा भी नहीं, नॉर्मल सा क्लाइमेट। and rice grows well in warm wet tropical climate. राइस को बहुत वार्म चाहिए होता है क्लाइमेट और वेट चाहिए होता है, खूब खूब पानी चाहिए होता है, बहुत पानी। सो these two grains are the most important food of people in different parts of the world. जैसे हम सबको मालूम है कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट क्रॉप्स बहुत अच्छी उगती हैं। जहाँ पर बहुत वेट क्लाइमेट होगा वहाँ पर राइस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और जहाँ पर जो है ना वार्म और ड्राई क्लाइमेट होगा, फर्टाइल सॉइल होगी, वहाँ पे वीट बहुत अच्छी ग्रो करेगी। अब ये पिक्चर आप देखें तो इसमें राइस को ग्रो करने की कर रहे हैं, ये जो है ना, ये उनके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो लगा रहे हैं राइस के, और ये बिल्कुल पानी में खड़े हुए हैं और पानी में लग रहा है। तो इट मीन्स, और ये जब इसकी फसल ग्रो भी कर जाती है तब भी इसको बहुत एम्पल वाटर चाहिए होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई चाहिए होती है राइस को ग्रो करने के लिए। और वीट, वीट को जब हम देखें, इसको ड्राई वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है लेकिन बहुत रेन नहीं चाहिए होती। सो डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ climate to grow well. And the food habits of people depend on the crops that are grown locally. लोकली मतलब कि आप लोगों को जो अपने इलाके में ग्रो की हुई क्रॉप्स मिल रही हैं उसके हिसाब से लोगों की फूड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। अब जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का डिफरेंस देखिए आप, ये जो आप लोगों को राइट साइड पर पिक्चर दिखाई जा रही है, ये एक बांग्लादेश के दस्तरखान की पिक्चर है, और हमारे लेफ्ट साइड पर पाकिस्तानी। अब जैसे हमारे हर खाने के साथ हम लोग, हर ग्रेवी के साथ और हर चीज़ के साथ हम लोग रोटी यूज़ करते हैं। सो वीट, हमारे यहाँ वैसे अल्हम्दुलिल्लाह राइस की भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है कुछ एरियाज़ में, लेकिन हमारे यहाँ वीट को प्रेफर किया जाता है। वेयर एज बांग्लादेश में, क्योंकि बहुत ह्यूमिड और बहुत रेनफॉल भी बहुत होती है, वहाँ पे बहुत ह्यूमिड इन्वायरमेंट है वहाँ का, तो वहाँ सबसे अच्छी ग्रोथ जो हो सकती है किसी भी क्रॉप की वो राइस है। तो उनके खाने में हर डिश के साथ एक जो साइड डिश, जो ग्रेन डिश होती है, उसमें राइस होता है। वो हर खाने में राइस खाते हैं अपने उसके साथ, रादर देन वीट, क्योंकि वहाँ पे वीट की पैदावार बहुत कम है। So students, this is the end of our topic today. That was the effect of climate. And now your home assignment is the page number activity on page number 6. That is the A part and the B part.
ए पार्ट में आपने क्या करना है, इफ़ यू लिव इन मुल्तान विच इज़ फेयरली सेंट्रल town of Pakistan, show where the following cities are on the outline map. Karachi is to the south near the sea, इधर को कराची है. Quetta is to the west and Lahore is to the east near the border of India. Peshawar to the northwest. This is the northwest. And Islamabad is to the north. इस्लामाबाद इज़ इन पंजाब. आप नेट पे से कहीं से पाकिस्तान का मैप सर्च करके ये सारे एरियाज अपनी बुक पर इस मैप पर मेंशन करें. एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. ये भी बहुत आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी करेंगे आप अपनी बुक पर. एंड exercise of chapter number 2, question number 1 is your homework. You have to do it in your copies. In what ways does the climate affect our lives? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लाइमेट किस तरह हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है. तो आप ये पेज नंबर 7 पर से देख सकते हैं. इस पैराग्राफ में से आपको आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में से. तो आप प्लीज़ अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. एक स्मॉल पैराग्राफ आपने लिखना है इसके आंसर में. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.